બેસો બેસો આનંદ મંગલ આનંદ મંગલ છે. ये परमेश्वरानंद है स्वामी जी. ये जिज्ञासु आश्रम में जो तत्वबुद्ध हुआ था ना, उसके पास रहते हैं, मगर कई साल उत्तरकाशी में भी रहे हैं. कौन सा जिज्ञासु आश्रम? वो हमारा हरिद्वार में तत्वबुद्ध हुआ ना. हाँ 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 हाँ, वहाँ भारत माता मंदिर के पास ही एक आश्रम है स्वामी जी. हाँ, तो पधारे हैं कल, तो मैंने बोला आज तो वहीं है, हरिद्वार में ही है? हाँ, हरिद्वार में है. उत्तरकाशी में? नहीं, उत्तरकाशी पहले गए थे, रहे थे. हाँ, आनंद मंगल आनंद. ये स्वामी जी वो कैलाश के मेघानंद जी हैं जो मुख्य आचार्य हैं, उनका वो नी ऑपरेशन है, इसीलिए ये लोग आए हैं. कल स्वामी जी भी आए हैं, मेघानंद जी. हाँ, कैलाश आश्रम के मुख्य आचार्य. तो उसका रिप्लेसमेंट का करना है, तो इसीलिए तो आए, तो बोले आज दर्शन करेंगे. मेघानंद जी की अवस्था होगी नहीं? बहुत. ये बंद करना. 2-3 વર્ષ પહેલા એક પગનું કરાવી દીધું પ્રભુ, પછી આ વખતે કીધું બીજા. कैसी अवस्था? मेघानंद जी को कितने साल हुए? 75 से ऊपर ही थे. પણ અત્યારે મહામંડલેશ્વર તો બીજા હશે. દિવ્યાનંદ. હા દિવ્યાનંદ. દિવ્યાનંદ. હા, દિવ્યાનંદ સામે પેલું રહેતા હતા ને, હા હા પછી એમને બોલાવીને હા બનાવ્યા. બોલા. ઋષિકેશમાં જ રહેતા હતા ને? હા, ઋષિકેશમાં. એ નદીના સામે રહેતા હતા પહેલા, એક કુટિયામાં વૈરાગી એકદમ. પછી આપણે કે તમે બનો મહામંડળ. એને પેલા કાલી કંપની વાળાની કુટિયામાં હા, કાર્યક્રમની વાળી કુટિયામાં. પથિકાસ બરાબર. એકદમ ગંગા પર. હા, ગંગા તત્વ. પહેલા નંબરમાં 1 નંબરમાં પેલા રહેતો હતો ને, પેલા સ્વામી પેલા હંસાનંદ. હા દંડી સ્વામી હંસાનંદ. દંડી સ્વામી. હા. એ પેલા 1 નંબરમાં. हाँ, हाँ, शरीर वो शांत हो गया. બરાબર. એટલે મોટાવાળા ગોવા પ્રભુ હતા ને, એમના શિષ્ય હતા. हाँ, अच्छा अच्छा. એટલે એમને ત્યાં આવેલા. हाँ, હા, પાલનપુર આવેલા. हाँ, पालन. केतन प्रभु મુકા પ્રભુ બેસવા દેજો. ક્યાં ગયા? बाथरूम है. अच्छा. अब तो हिंदी में ही समझते हैं. हिंदी गुजराती समझते था वो. गुजराती समझते हैं जी. पूरा? पूरा तो नहीं समझते. ओम ओम बराबर. परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है. शून्यपास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं. वशिष्ठराम उत्पत्ति प्रकरण राउंड 38वां राउंड. आद्य परब्रह्म सदगुरु ओम
ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણ ઉત્પત્તિ પ્રકરણ, પેજ નંબર 304, 304. સર્ગ 78મો. રાજા તથા મંત્રીની સાથે રાક્ષસીનો સંવાદ. આ 78મા સર્ગમાં રાક્ષસીના ભયંકર વચનથી નિર્ભય રહેલા રાજાને તે રાક્ષસીએ પોતાનું સ્વરૂપ દેખાડ્યું તથા કારભારીના અનુનયથી રાક્ષસીએ પ્રશ્ન પૂછવાનો આરંભ કર્યો તેનું વર્ણન આવશે. વસિષ્ઠ બોલ્યા, હવે રાક્ષસ કુલરૂપી વનની મંજરી સમાન તે રાક્ષસીએ જાણે અભ્રલેખાની જેમ અંધકારમાં ગંભીર નાદ કર્યો. જેમ કે મેઘની ગર્જના થયા પછી કરા તથા વજ્ર પડે તેમ નાદ કર્યા પછી તે રાક્ષસીએ અકઠોરપણાથી રાજાને તથા કારભારીને આ પ્રમાણે પૂછ્યું કે અરે રે, પ્રઘોર જંગલરૂપી આકાશની પદવીને પ્રકાશ કરનારા ચંદ્ર અને સૂર્ય, અરે મહામાયારૂપી અજ્ઞાનની આધાર પીઠરૂપી ગુફામાં રહેલા પૃથ્વીમાંના કીડાઓ, તમે કોણ છો? તમે આત્મજ્ઞાની હોવાથી પૂજ્ય બુદ્ધિવાળા છો કે તેમ ન હોવાથી દુર્બુદ્ધિવાળા છો? તમે મારો કોળિયો થવા આવો છો, માટે તમે દુષ્ટ એવા મરણને યોગ્ય છો. રાજા બોલ્યો, અરે ભૂત, તું કોણ છે? ક્યાં છે તું? તારો દેહ દેખાડ. ભ્રમરીના જેવા તારા શબ્દથી કોણ બીએ છે? કાર્ય સાધક માણસ પોતાના કાર્યમાં સિંહની પેઠે દોટ મૂકે છે, માટે ક્રોધથી ભયંકર ઉદ્યોગનો ત્યાગ કરી તું તારું પરાક્રમ દેખાડ. હે સુવ્રત, તું શું પ્રાર્થે છે તે કહે, હું તને તે આપીશ. અમને ક્રોધના શબ્દ સંભળાવી તું શા સારું બીવડાવે છે? અથવા શું તને જ ભય છે? તું તારા આકાર અને શબ્દથી અમારી સન્મુખ આવીને ઊભો રહે, કારણ કે દીર્ઘસૂત્રીનો ક્ષય થાય છે પણ તેનો અર્થ સિદ્ધ થતો નથી. રાજાએ એ પ્રમાણે કહ્યું ત્યારે તે રાક્ષસીએ વિચાર્યું કે રાજાએ મનોહર વચન કયા. પછી તેણે તેમની આગળ પ્રત્યક્ષ થવાને તેમજ તેમની અધીરતા ટાળવા માટે નાદ કર્યો તથા હાસ્ય કર્યું. ત્યાં રાજા તથા કારભારીએ નાદના શબ્દથી દિશાને પૂરનારી તથા અટ્ટહાસ્યને લીધે દાંતની કાંતિથી પોતાના આકારને પ્રકાશ કરનારી તે રાક્ષસીને જોઈ. તે પ્રલયકાળે વાદળામાં વજ્ર જેવા કડાકાથી પીસાઈ ગયેલા પર્વતની ટોચ હોય તેવી જણાતી હતી, અને તે નેત્રરૂપી વીજળીથી તથા બગલી જેવી ચૂડીઓથી આકાશને પ્રકાશિત કરતી હતી. તે અંધારૂપી એક સમુદ્રમાં વડવાનળની જ્વાળા જેવી જણાતી હતી, અને તેની કાંધ ગર્જના કરતા મેઘની ઘટા જેવી ઘાટી હતી. શબ્દ કરતા દાંતના કચકચાટથી તે નિશાચરોનો નાશ કરતી હતી, અને તે કાજળ જેવા આકારથી આકાશ તથા પૃથ્વીને આધાર સ્તંભ સમાન હતી. વળી તે લીલા વડે શોભતી હતી. તેના કેશ ઊંચા હતા, તેનું અંગ ઘણી નાડીઓ વાળું હતું, તેના નેત્ર પીળા હતા, અને પોતે તમોમય હતી. તે યક્ષ, રાક્ષસ તથા પિશાચને પણ અનર્થથી ભય ઉત્પન્ન કરતી હતી. તેના દેહના છિદ્રમાં પ્રવેશ કરતા વાયુથી ભયંકર શબ્દ થતો હતો. તેણે પોતાના મસ્તક ઉપર હળ, મૂછળ, ખાંડણીઓ, ઉંબાડિયું તથા સુપડું રાખેલા હતા. કલ્પના અંતે સ્ફૂર્તિ વિખાઈ ગયેલી વૈડૂર્ય પર્વતના શિખરની ભૂમિ હોય તેવી તે જણાતી હતી. તે હાસ્યથી દેવતાની પણ હિંસા કરનારી જાણે કાળ રાત્રિ હોય તેમ દેખાતી હતી. વાદળાવાળી શરદ ઋતુની આકાશટવી (વન) જાણે દેહ ધરીને આવી હોય, અને ઘણા વાદળાથી યુક્ત અને પુષ્ટ શરીરવાળી જાણે રાત્રિ હોય એવી તે જણાતી હતી. શરીરની સ્થૂળતાથી જાણે પૃથ્વીની પીઠ ઉઠી હોય, તથા ચંદ્ર અને સૂર્યની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે જાણે રાહુએ તેના દેહનો આશ્રય લીધો હોય એવી તે રાક્ષસી જણાતી હતી. તેના સ્તન ઇન્દ્રનીલ મણિના જેવા મહાતેજસ્વી લાંબા વાદળા જેવા હતા. તે શ્યામ હતા, અને તેમના ઉપર તેણે ખાંડણિયા આદિના હાર સમૂહો સજ્યા હતા. તેનું શરીર બળેલા લાકડા જેવું હતું, અને તેના ઉપર તે કાષ્ઠના ચિહ્નો હતા.
ઝાડની કાંતિ જેવા હલનચલન રહિત તથા નાડીઓ સહિત મોટા તેના હાથ હતા. આવા આકારવાળી તે રાક્ષસીને જોઈને રાજા તથા કારભારી ક્ષોભ પામ્યા વિના ઊભા રહ્યા, કારણ કે સત્ય તથા અસત્યના વિવેકથી શોભતા માણસને કોઈ પણ પદાર્થથી મોહ ઉત્પન્ન થતો નથી. સત્ય તથા અસત્યના વિવેકથી શોભતા માણસને કોઈ પણ પદાર્થથી મોહ ઉત્પન્ન થતો નથી. મંત્રી બોલ્યા, હે રાક્ષસી, ઈચ્છિત વસ્તુ સિદ્ધ કરવા માટે તારે આટલો મોટો ક્રોધ કરવાનું કારણ શું? હલકા માણસ થોડા કામમાં પણ ઘણો ક્રોધ કરે છે. હલકા માણસ થોડા કામમાં પણ ઘણો ક્રોધ કરે છે. તું ક્રોધનો ત્યાગ કર. આવો ક્રોધ કરવો તને શોભતો નથી, કારણ કે બુદ્ધિમાન માણસ પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવામાં યુક્તિથી જ વર્તે છે. હે અબળા, પવન જેવી રીતે ખડ તથા પાંદડાને ઉડાડી મૂકે છે, તેવી રીતે તારા જેવા હજારો મગતરાને અમે ધીરજરૂપી વાયુથી ઉડાડી મૂક્યા છે. ડાયા માણસો ક્રોધનો ત્યાગ કરે છે અને સમાન તથા સ્વચ્છ બુદ્ધિથી તેમજ વ્યવહારની યોગ્ય યુક્તિથી પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરે છે. પોતાના યોગ્ય વ્યવહારની યુક્તિથી કાર્ય સિદ્ધ થાય કે ન થાય તો પણ યોગ્ય માર્ગનો ત્યાગ ન કરવો એવી નિયતિ છે. પોતાના યોગ્ય વ્યવહારની યુક્તિથી કાર્ય સિદ્ધ થાય કે ન થાય તો પણ યોગ્ય માર્ગનો ત્યાગ ન કરવો એવી નિયતિ છે. તો પછી કાર્ય સિદ્ધ થવાનો નિશ્ચય હોય ત્યારે ક્રોધને અવસર જ કેમ હોય? માટે હે અર્થિની, કહે તારી શી ઇષ્ટ ઈચ્છા છે? યાચના કરવા આવેલો કોઈ પણ માણસ પોતાની કોઈ પણ ઈચ્છા પૂરી કર્યા વિના સ્વપ્નમાં પણ અમારી પાસેથી પાછો ગયો નથી. મંત્રીએ તેને આ પ્રમાણે કહ્યું એટલે એ રાક્ષસીએ વિચાર કર્યો કે અહો, પુરુષમાં સિંહ સમાન આ બંનેનું ધૈર્ય અને બુદ્ધિબળ કેવા શુદ્ધ છે. આ બંને સામાન્ય મનુષ્ય હોય એમ હું માનતી નથી. આ ચમત્કૃતિ વિચિત્ર છે કે એમના વચન, મુખ તથા નેત્રથી તેમના અંતઃકરણનો નિશ્ચય જણાય છે. જે પ્રમાણે જળ ભેગું થવાથી એકતા પામે છે, તે પ્રમાણે બુદ્ધિમાનનો આશય તેના વચન, મુખ અને નેત્રથી એકતાને પામે છે. આ બંને ઘણું કરીને મારા મનનો અભિપ્રાય જાણ્યો છે અને મેં તેમનો અભિપ્રાય જાણ્યો છે. માટે આ બંને પોતાની મેળે જ અવિનાશી છે અને મારે તેમનો નાશ કરવો નહીં. આ બંને આત્મજ્ઞાની છે એમ હું ધારું છું, કારણ કે જીવન મરણનો ભ્રમ મટાડનાર આત્મજ્ઞાન વિના આવી બુદ્ધિ હોય નહીં. એમની આવી બુદ્ધિ છે, તેથી તેઓ અભયરૂપ અને અમૃતરૂપ છે. લાવ ત્યારે મારા મનમાં જે કાંઈ સંદેહ થયો છે તે હું એમને પૂછું. જે મનુષ્ય વિદ્વાન માણસ મળ્યા છતાં તેને પોતાના સંદેહ વિશે પૂછતો નથી, તેને અધમ સમજવો. આ પ્રમાણે વિચાર કરીને તે પ્રશ્ન પૂછવાને અવસર જોવા લાગી. પછી કલ્પના અંત સમયના મેઘના શબ્દ જેવા પોતાના હાસ્યને રોકીને તે રાક્ષસીએ આ પ્રમાણે પૂછ્યું, હે નિષ્પાપ, હે ધીરજવાળા, તમે બંને કોણ છો તે કહો. નિર્મળ ચિત્તવાળા માણસના દર્શન કરવાથી જ તેની સાથે મિત્રતા થાય છે. મંત્રી બોલ્યો, આ કિરાત દેશના રાજા છે અને હું તેમનો મંત્રી છું, અને અમે આ રાત્રિચર્યાથી તારા જેવા દુષ્ટનો નાશ કરવા તત્પર થયા છીએ. રાત્રિ દિવસ દુષ્ટને શિક્ષા કરવી એ જ રાજાનો ધર્મ છે. જે માણસ પોતાના ધર્મનો ત્યાગ કરે છે તે માણસ વિનાશરૂપી અગ્નિના કાષ્ઠરૂપ બને છે. રાક્ષસી બોલી, હે રાજન, તમારો કારભારી દુષ્ટ છે. જેનો કારભારી દુષ્ટ હોય તે રાજા ન કહેવાય. સારો રાજા હોય તેને જ સારો કારભારી હોય છે, અને સારો કારભારી જેને હોય તે જ રાજા છે. સારા કારભારીએ પોતાના રાજાને વિવેકમાં જોડવો. એ વિવેકથી શ્રેષ્ઠપણાને પ્રમાય છે, અને જેવો રાજા તેવી પ્રજા હોય છે. સમસ્ત ગુણના સમૂહમાં અધ્યાત્મ જ્ઞાન એ જ ઉત્તમ ગુણ છે. સમસ્ત ગુણના સમૂહમાં અધ્યાત્મ જ્ઞાન એ જ ઉત્તમ ગુણ છે, અને જેનામાં એવા ગુણ હોય તે જ રાજા ગણાય છે. તેવા ગુણની સાથે જેનામાં વિચારના રહસ્ય જાણવાના ગુણ હોય તે જ કારભારી ગણાય. આત્મવિદ્યાથી પ્રભુપણું તથા સમદ્રષ્ટિપણું મળે છે.
માટે જેને આત્મવિદ્યાનું જ્ઞાન નથી તે કારભારી પણ ન ગણાય, તેમ રાજા પણ ન ગણાય. જો તમને બંનેને આત્મવિદ્યાનું જ્ઞાન હોય તો તમારું કલ્યાણ છે, પણ જો તેમ ન હોય તો તમે પ્રજાને અનર્થ કરનાર છો, માટે હું તમારું ભક્ષણ કરીશ. હું તમને બંનેને કેટલાક પ્રશ્ન પૂછું છું, તેનો તમે મને બુદ્ધિથી વિચાર કરીને ઉત્તર આપશો તો જેમ મા બાપની બાળક ઉપર પ્રીતિ થાય તેમ તમે મારા પ્રીતિપાત્ર થશો. હે રાજા, તમે કે તમારો મંત્રી મારા આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપો. મને એ ઉત્તર સાંભળવાની અત્યંત ઈચ્છા છે. તમે તે ઈચ્છા પૂરી કરો. આ લોકમાં એવો કોણ પુરુષ છે કે તે કહેલા પદાર્થને ન આપીને ક્ષયકારી દોષને પામે? શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણનો રાક્ષસી વર્ણન નામનો સર્ગ 78મો સમાપ્ત. સર્ગ 79મો. કર્કટી રાક્ષસીએ રાજાને તથા મંત્રીને પૂછેલા 72 પ્રશ્નો. આ 79માં સર્ગમાં જે માણસને આત્મજ્ઞાન નથી તેવા માણસને વજ્ર સમાન લાગે તેવા તથા જ્ઞાનવાનને મનોહર લાગે તેવા 72 પ્રશ્નો કર્કટી રાક્ષસીએ રાજાને પૂછ્યા. વસિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, રાક્ષસીએ એ પ્રમાણે કહ્યું ત્યારે રાજાએ કહ્યું, પૂછો. એટલે તે રાક્ષસીએ પ્રશ્ન પૂછવાનો પ્રારંભ કર્યો. હું તમને તે પ્રશ્નો કહું છું, તે તમે સાંભળો. રાક્ષસી બોલી, 1. સમુદ્રમાં જેવી રીતે લાખો બુદબુદ થાય છે કૌંસમાં અને લય પામે છે, તેવી રીતે જેની અંદર લાખો બ્રહ્માંડનો લય થાય છે તેવો અનેક સંખ્યાવાળો કયો એક અણુ છે? वशिष्ठ राम को कहते हैं और कर्कटी राक्षसी राजा और मंत्री को पूछती है। 72 प्रश्न है। जैसे समुद्र में लाखों बुदबुद उत्पन्न होते हैं और लय भी उसका होता है, लीन होते हैं, वैसे ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें लाखों ब्रह्मांडों बुदबुद के समान उत्पन्न होकर लीन होते हैं? ये पहला प्रश्न। 72 प्रश्न, सबका उत्तर हमारा तो ये सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण का पहले अक्षर से आखिरी अक्षर तक वर्षों से अखंड पूर्ण तत्वबोध, अखंड पूर्ण ब्रह्मबोध ही अखंड पूर्ण ब्रह्म, अखंड पूर्ण तत्वबोध ही अखंड पूर्ण तत्व। तो 38वां राउंड है, 38th राउंड। पहले अक्षर से आखिरी अक्षर। गुजराती भिक्षुओं के अनुसार साहित्य का अनुवाद 2 भाग हैं। तो उसमें पहला वैराग्य प्रकरण, फिर मुमुक्षु प्रकरण, फिर उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, निर्वाण पूर्वार्ध, निर्वाण उत्तरार्ध। तो 1756 पेज है, वो हमारा 38वां राउंड है। एक एक अक्षर को पूरा पूरा लिया है, प्रकाश से लिया है, शब्द बुद्धि से नहीं लिया है, प्रकाश से लिया है, चैतन्य प्रकाश। तो ये सारा जो है ये परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। तो निर्वाण में आखिर में एक ही बार 1756 पेज मैंने पहले ऐसा कहा है इसमें कि योग वासिष्ठ के 1 लाख मंत्र थे और बाद में 32,000 मंत्र किए, 32,000 श्लोक। पहले 1 लाख श्लोक थे, अभी 32,000 श्लोक है। उसमें एक ही बार राम ने लास्ट में निर्वाण में वशिष्ठ मुनि को संबोधन किया है, हे परम चिदाकाश वशिष्ठ मुनि। इसलिए क्योंकि वशिष्ठ ऐसा अपने को ऐसे व्यक्त करते हैं कि मैं ये वशिष्ठ नहीं हूँ, मैं परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति हूँ। तो इसका सारा इसी जो वक्तव्य से ये सिद्ध होता है कि यह सारा टोटल में अनंत संपूर्णता में माने अनंत संपूर्ण अस्तित्व परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है।
महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगन अनंत चिदगन है। परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेजगन है। परमाकाश अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति है। स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्य पास अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। तो यह सारा टोटल अनंत संपूर्णता में सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। स्वयं महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है। महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद। महाचिदाकाश ज्योति महातत्व महासामान्य। महाचिदाकाश ज्योति महासत्ता महाचैतन्य। महाचिदाकाश ज्योति महाआनंद महाशांति। महाचिदाकाश ज्योति कैवल्य अणिशुद्ध आर पार। महाचिदाकाश कैवल्य अणिशुद्ध आर पार। कैवल्य सदा एक रूप ऑल इज वन, सब एक है, सब महाचैतन्य प्रकाश है। तो अभी वशिष्ठ राम को ये प्रकाश कर रहे हैं, जो प्रकाश अनादि सिद्ध सत्य है। चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत। परमाकाश अनंत संपूर्ण अनंत सर्वतः। परमाकाश निरंजन निराकार निर्विकार। अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश। अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति। अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति। अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति। अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम चिदाकाश। महाचिदाकाश अनंत पूर्ण सार्वभौम सत्ता। महाचिदाकाश महाचक्रवर्ती महासाम्राज्य। महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। महाचिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। महाचिदाकाश स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति। ये महाकैवल्य है। अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महाकैवल्य। अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासामान्य। अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश। अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश सच्चिदानंद। अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश एक रूपता। अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश परम शांति। अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश निरपेक्ष सत्य। अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश निरपेक्ष सत्य। अनंत संपूर्ण अपरिज्ञ निर्भ्रांत निरपेक्ष। केवल स्वयं पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद। केवल स्वयं अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा। स्वयं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश। सच्चिदानंद माने सत बराबर अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व। चित बराबर अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य। आनंद बराबर अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद। तो अभी वशिष्ठ राम को कहते हैं कि कर्कटी का दृष्टांत देखे। 72 प्रश्न पूछते हैं। तो कर्कटी उसको पूछे कि जैसे समुद्र में लाखों बुद्ध उत्पन्न होकर लीन होते हैं, वैसे ऐसा कौन है जिसमें लाखों ब्रह्मांड उत्पन्न होकर लीन होते हैं। तो 72 प्रश्न सारे प्रश्न के उत्तर। अभी दोनों आत्मज्ञानी है, कर्कटी भी आत्मज्ञानी है, राजा और मंत्री भी दोनों पक्ष आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञान किसको कहेंगे कि ये सब जो है अनंत संपूर्ण अस्तित्व, एक परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही है। केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है। अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश ही है। तो सब
तो जो आत्मज्ञानी होगा तो उसमें यही होगा, परब्रह्म परमात्मा ही होगा, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप, परम शांति स्वरूप ही होगा, परम कैवल्य, परम पद, परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति, जो राम चाहते हैं। तो आत्मज्ञानी के सब उत्तर, सब प्रश्न का उत्तर तो एक ही आएगा, एक ही शब्द में सब परिचित है। प्रसिद्ध शब्द जो है उसका शब्द तो नहीं है, बस ये राम को कहते हैं। चैतन्य का चैतन्य नाम भी नहीं है। ब्रह्म और परमात्मा शब्द भी कल्पित है। पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगण, अनंत चेतगण, वो तो अनंत चैतन्य प्रकाश है, वो तो अनंत चैतन्य तेज है, अनंत चैतन्य ज्योति है, वो शब्द नहीं है। विचारवाणी शब्द में, विचारवाणी शब्द नहीं है। और परापश्यंती मध्यम विक्री भी नहीं है। जैसे कैलाश में सदाशिव ने वशिष्ठ को कहा कि जो 29 से 42 निर्वाण पूर्वार्ध, 29 से 42 14 सर्ग में सदाशिव वशिष्ठ संवाद है कैलाश। तो सदाशिव कहते हैं महादेव आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। मैं सदाशिव भी सच्चा देव नहीं हूँ। विष्णु ब्रह्मा इंद्रादिक कोई सच्चा देव नहीं है। वायु अग्नि चंद्र सूर्य कोई सच्चा देव नहीं है। कोई ब्रह्मर्षि राजर्षि रुद्र और वशिष्ठ तुम भी सच्चे देव नहीं हो। आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। अखंडित बोध ही चैतन्य देव का पूजन है। ये अखंडित बोध ये चैतन्य देव का पूजन है। उसमें पूजक पूजा पूज्य देव त्रिपुटी भेद नहीं है, एक ही चैतन्य है, अखंड चैतन्य है। जैसे आकाश है तो उसमें दूसरा आकाश नहीं है, वैसे चिदाकाश है उसमें दूसरा चिदाकाश नहीं है। वैसे तो फिर जो आत्मज्ञानी होगा वो तो वो होगा, तभी तो आत्मज्ञान होगा। यदि आत्मज्ञानात है वो तो कैवल्यम, यदि ज्ञान से ही मुक्ति है तो मुक्ति कब होगी? तो मुक्त तो वही है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। तो जो वो रहा है तो वही आत्मज्ञान है ऐसा। तो उसमें उसका कोई विकल्प नहीं है ऐसा। माचिदा का स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, और स्वसंवेद्य माने उसका अनुभव वो अपने से अनुभव में आने वाला है, चैतन्य, अखंड चैतन्य। दूसरा ये जो आभास का कोई है वो अनुभवीय त्रिपुटी नहीं है। अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति, वहाँ चैतन्य अनुभव, चैतन्य स्वयं है, चैतन्य भिन्न। वो भी सदाशिव ने 42वें सर्ग में कहा, निर्वाण पूर्वार्ध लास्ट में 29 से 42 14 है, 14 सर्ग कि चैतन्य भिन्न, चैतन्य का दूसरा अनुभव नहीं है। चैतन्य भिन्न अपना दूसरा अनुभव नहीं है, माने चैतन्य ही चैतन्य का अनुभव है। तो जहाँ अखंड चैतन्य अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति में जो पूर्ण चैतन्य रहा है, जो अनंत अखंड अभेद, तो वो चैतन्य ही अपना अनुभव है। वहाँ वो इंद्रियातीत है। तो यथ वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स अवंग मनसा गोचरम। तो ये किसी का जो आभास के ये सब है वो किसी का वो अनुभव नहीं है, चैतन्य ही अपना अनुभव है, अपने में अपना। तो ऐसा जिसको वही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म विद्या है। तो आत्मज्ञानी को पूछे तो उसमें सबका उत्तर एक ही आएगा, सबका उत्तर एक ही आएगा कि ये सब क्या है? तो सब अखंड चैतन्य है, अखंड ब्रह्म है। ऐसे भी प्रक्रिया कहती है कि अखंड ब्रह्म में ब्रह्म का वृत्ति भी नहीं है और शास्त्र गुरु वासना भी नहीं है। वो भी सदाशिव ने वशिष्ठ को कहा कैलाश में कि अविद्या है ही नहीं, ऐसा बोध ही अविद्या का क्षय है। शास्त्र गुरु अविद्या का क्षय नहीं करते हैं। सदाशिव महादेव कहते हैं अविद्या है ही नहीं, ऐसा बोध ही अविद्या का क्षय है। शास्त्र गुरु अविद्या का क्षय नहीं करते हैं। और शास्त्र गुरु आत्मा को प्रकाश से नहीं है, आत्मा स्वयं प्रकाश है और अपने प्रकाश से ही जाना जाता है, दूसरा प्रकाश नहीं है। ऐसा सदाशिव वशिष्ठ को कहते हैं।
और वशिष्ठ राम को कहते हैं कि पुष्प को मसलने में थोड़ा भी परिश्रम लगता है, आत्मा को जानने में उतना भी परिश्रम नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है, अपने प्रकाश से ही जाना जाता है, दूसरा प्रकाश ही नहीं है। स्वसमेत्य महाचिदाकाश। आत्मा किसको कहते हैं वशिष्ठ? आत्मा महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म, उसको आत्मा कहते हैं। तो ये आभास की कोई व्यक्ति आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सब असत, असार, दुख, मिथ्या, नाशवंत और स्वप्नवत मुग्जलवत है, वो कोई आत्मा नहीं है। और जो अनादिसित, जो कृष्ण ने भी गीता में कहा है, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत परब्रह्म न सद उच्यते। और ऐसा भी कहा है कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा भी कहा है ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। तो वशिष्ठ इस जो परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है, केवल है, स्वयं है, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, वो परब्रह्म ज्ञान है, ज्ञेय जानने योग्य तत्व है। और ज्ञानगम्य, ज्ञान ज्ञान से ही जाना जाता है, प्रकाश प्रकाश से ही जाना जाता है, चैतन्य चैतन्य से ही जाना जाता है, स्वसंवेद्य है। तो ज्ञान है तो महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, तो महाचिदा का स्वयं प्रकाश है, वो अनुभव ज्ञान है। स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। तो आभास में जो है वो शब्द ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान, गुरु ज्ञान, उपचार, उपदेश का उपचार ज्ञान। तो उपदेशक, उपदेश, उपदेश, त्रिपुट, ये भी आभास, आभास है, एपियरेंस, दिखावा मात्र। तो ये दृश्य है। वशिष्ठ एक ही विवेक करते हैं कि परम सत्ता परब्रह्म है, अखंड सच्चिदानंद, और दृश्य कुछ नहीं है, दृश्य आभास मात्र है। जैसे स्वप्न है, तो जहाँ चिदाकाश है वहीं स्वप्न भासता है, क्योंकि चिदाकाश के सिवा तो कुछ है नहीं, सर्वत्र है, सदा है, स्वयं है, सहज है, सर्वस्व है। तो स्वप्न भासता है, वहाँ भी चिदाकाश है। तो चिदाकाश है और स्वप्न नहीं है। तो वैसे चिदाकाश है वहीं जो एक ही संकल्प कल्पना स्वप्न भासती है, वही संकल्प कल्पना जागृत भासती है, और वही सुसुप्ति भासती है। तो जहाँ चिदाकाश है वहाँ स्वप्न भासता है, तो चिदाकाश है स्वप्न नहीं। वैसे ही जहाँ चिदाकाश है वहाँ जागृत भासता है, तो चिदाकाश है जागृत नहीं है। और जहाँ चिदाकाश है वहीं सुसुप्ति भासती है। तो जहाँ चिदाकाश है तो चिदाकाश है और सुसुप्ति नहीं है। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति नहीं है, अध्यस्त नहीं है, अधिष्ठान है। अध्यस्त माना आरोपित, कल्पित। तो कल्पित कुछ नहीं है और अधिष्ठान है, आधारभूत मूल तत्व, मूल असल शुद्ध सूक्ष्म पूर्ण तत्व स्वरूप है। मूल असल शुद्ध सूक्ष्म पूर्ण महाचिदाकाश। तो अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है। तो ये सारा अनंत निराकार परब्रह्म आकाश प्रकाश, अनंत निराकार परब्रह्म आकाश प्रकाश। तो आकाश जैसा अनंत स्वच्छ चिदाकाश है, चैतन्य प्रकाश है। तो आत्मज्ञानी होगा तो अपने में संवाद होगा। तो आत्मज्ञान के संवाद में जो मूल मुख्य तत्व है, परम सत्य, परम चिदाकाश, परम सत्य, परम तत्व, वही आएगा। तो ज़्यादा प्रसिद्ध शब्द तो परब्रह्म परमात्मा ही है, तो वही आएगा उत्तर। कि भाई लाखों, जैसे समुद्र में लाखों बुद्ध उत्पन्न हो के लीन हो जाते हैं, वैसे ऐसा कौन है जिसमें लाखों ब्रह्मांडों बुद्ध के समान उत्पन्न होकर लीन हो जाते हैं? परमात्मा। पहले से आखिरी 72 प्रश्न पूछो या हजारों प्रश्न पूछो, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों प्रश्न पूछो, सबका उत्तर तो एक ही आएगा, क्योंकि सर्व परमात्मा है। तो वही तो आत्मज्ञान है। और फिर महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो जो जिसको विवर्त भी कहते हैं, जिसको प्रतिभास भी कहते हैं, जिसको कल्पना भी कहते हैं, भ्रम भी कहते हैं,
तो जिसको प्रक्षेप भी कहते हैं, तो वो जो प्रक्षिप्त में है वो कुछ नहीं है। फिर वहाँ परमात्मा है और सर्वत्र है, सदा है, स्वयं है, सहज है, संपूर्ण है, सर्वस्व है। तो ये सारा जो ईश्वर से मिट्टी की रच तक जो सारा दृश्य है, तो वो आभास मात्र है और सारा अधिष्ठान परमात्मा है, अखंड सच्चिदानंद, माने परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद। तो प्रश्नोत्तर होगा तो उसमें जब प्रतिभास का मैं नहीं होगा, तब आत्मज्ञान उसको को कहेंगे कि जो आत्मा परम सत्ता, परब्रह्म, अखंड सच्चिदानंद, सर्वात्मा, परमात्मा, एकात्मा, सर्वात्मा, समानात्मा, पूर्णात्मा, परमात्मा, एक आत्मा, सर्वात्मा, समानात्मा, पूर्णात्मा, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जनन। ये दो श्रुति पर ही पूरा योग वासिष्ठ का तत्वबोध है। पूरा वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार गीता है। व्यास ने तो 18 पुराण भी दिए और ब्रह्मसूत्र भी दिया है। उसमें ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत अध्यात्म रामायण भी दिया है, उसमें भी तत्व है, तत्व प्रकाश है। गुरु गीता में भी तत्व प्रकाश है। उसमें सदाशिव पार्वती को कहते हैं महादेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ये तो है, तो उत्तर एक ही आएगा, परमात्मा। प्रश्न नंबर 1 1। રાક્ષસી બોલી 1. સમુદ્રમાં જેવી રીતે લાખો બુદ્બુદ થાય છે અને લય પામે છે, તેવી રીતે જેની અંદર લાખો બ્રહ્માંડનો લય થાય છે, તેવો અનેક સંખ્યાવાળો કયો એક અણુ છે? પ્રશ્ન 2. यहाँ परमात्मा के लिए अणु शब्द योजा है, तो उसका अर्थ माने जैसे विज्ञान में अणु माने एक पार्टिकल, ऐसा नहीं, एक समझे रज, जैसे बोलते कि अणु तो पदार्थ का छोटा में छोटा कण, ऐसा नहीं। यहाँ अणु है वो परमात्मा की सूक्ष्मता का अर्थ है। अणु माने सूक्ष्म, अणु माने रज नहीं, पार्टिकल नहीं, समझाते नहीं। अणु बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, ऐसे नहीं। अणु माने सूक्ष्म। तो परमात्मा वसिष्ठ कहते हैं राम को कि जो बाल है तो उसकी जो 100 भाग नोक है, अरे करोड़ों भाग करो तो उससे भी सूक्ष्म परमात्मा है। केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। तो अणु माने उसकी अनंत सूक्ष्मता है। जैसे महासागर है तो उसकी विशालता भी है, व्यापकता भी है और गहनता भी है। तो यहाँ परमात्मा की गहनता का अर्थ है, समझे, डेप्थ, ऊंडाई, गहराई। अणु माने पार्टिकल नहीं। तो ये बाल है, उसका अणि है, अणि बोलते हैं ना, और उसका करोड़ों भाग उससे भी सूक्ष्म केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। वो तो अनंत व्यापक ही है, भरपूर है, कोई जगह खाली नहीं और कोई जगह नहीं वहाँ उसके सिवा दूसरी जगह हो, और कोई वस्तु नहीं, रज भी दूसरी जगह नहीं, उसमें रज भी दूसरी वस्तु नहीं। वैसा अनंत अखंड अभेद है। अणु माने सूक्ष्माति 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 अनंत बार सूक्ष्म अणु। પ્રશ્ન 2. કઈ એક વસ્તુમાં राजा का उत्तर, प्रश्न 1 का उत्तर नहीं दिया, એનો પ્રશ્ન જ ચાલુ છે। તો પહેલો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન 1. સમુદ્રમાં જેવી રીતે લાખો બુદ્બુદ થાય છે અને લય પામે છે, તેવી રીતે જેની અંદર લાખો બ્રહ્માંડનો લય થાય છે, તેવો અનેક સંખ્યાવાળો કયો એક અણુ છે? अभी अनेक संख्या भी बोले। जो अणु का तो प्रकाश हो गया कि वो सूक्ष्म है परमात्मा। अभी
लाखों संख्या वाला, ऐसा बोले ना, अनेक संख्या माने अनेक, अगणित। तो संख्या कैसे कही? तो जो वस्तु अपरिच्छिन्न हो, अनंत अखंड अभेद हो, माने जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद न हो, तो उसमें अनेक भेदों, वो शब्द कैसे आया? तो अध्यास को जोड़ के ऐसा कहा। ऐसा क्या ऐसा महासागर है जो अनेक भेदों वाला संख्या, तो अनेक चक्री तरंग फैन बुद्ध तो आभास मात्र है, तो उसमें भेद नहीं। एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ने नाना से किंचन, एक ही अद्वितीय ब्रह्म मन परमात्मा है, न यह नाना अस्ति किंचन, उसमें अनेक कुछ नहीं है। इसलिए जो अनेक संख्या शब्द है वो अध्यारोपित है, और जो अणु शब्द है वो अधिष्ठानवाचक है, और सूक्ष्मता में वो महाचिदाकाश, अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश एक रूपता, परमात्मा माने अनंत अखंड अभेद एक रूपता। तो यहाँ अनेक जो शब्द है ना, वो अध्यारोपित है, कल्पित। ऐसा महासागर अनेक चक्री तरंग भेद फैन बुद्ध वाला है, संख्या वाला है, तो अध्यारोप से कहा है, और अणु शब्द अधिष्ठान से कहा है। तो गहन से यदि महासागर के जल की गहराई में जाओ तो फिर अनेक चक्री तरंग फैन बुद्ध नहीं मिलेगा। वो अखंड है, घन है, पूर्ण है, भरपूर है। तो दोनों शब्द है, एक शब्द अध्यस्त वाचक है और एक शब्द अधिष्ठान वाचक है। तो जो अनेक शब्द है वो अध्यस्त वाचक है, और अणु शब्द है वो अधिष्ठान वाचक है, गहनता वाचक है। तो घनता वाचक है, घन, पूर्ण, भरपूर। तो जो वहाँ अनेक नहीं है। ऊपर देखेंगे तो फिर अनेक दिखेगा, चक्री तरंग फैन बुद्ध, ईश्वर, माया, जीव जगत। अधिष्ठान देखेंगे तो परम सत्ता, पर ब्रह्म, अखंड सच्चिदानंद। क्लियर है? मौका प्रभु क्लियर? नंबर 2 પ્રશ્ન 2, કઈ એક વસ્તુમાં આકાશ તથા અનાકાશ એ બંને છે? ऐसी कौन सी वस्तु है? परमात्मा। उसमें आकाश भी है और अनाकाश भी है। ये सदाशिव ने वशिष्ठ को कहा है कैलाश में, महादेव ने, कि आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश है। जो हम बताते थे कि ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम अश्नुते, अनादिमत पर ब्रह्म न सत न असद उच्यते। जो अनादि पर ब्रह्म है, अनादि सद, सिद्ध सत, जिसका आदि मध्य अंत नहीं है, तो उसमें ये आभास का सत भी नहीं है और असत भी नहीं। आभास में कुछ दिखता है तो उसको सत बोलते हैं, नहीं दिखता है तो उसको असत बोलते हैं। तो वो भी उसमें नहीं है। आभास का प्रतिभास बोलो, विवर्त बोलो, प्रक्षेप बोलो, कल्पना बोलो, भ्रम बोलो, तो उसका सत असत उसमें नहीं है। ऐसा ये आदि मध्य अंत वाला है, सत असत, और न सत न असत उच्यते। तो सदाशिव ने भी कैलाश में वशिष्ठ को कहा, आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। तो आदि से रहित, अंत से रहित एक शुद्ध तत्व है, जिसमें फिर 11 निषेध बताए। वो तत्व में चैतन्य, अखंड चैतन्य में, अखंड ब्रह्म में क्या है? अखंड सच्चिदानंद में। तो दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं है, कर्ता कर्म करण नहीं है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय नहीं है, बोधक बोध बोधव्य नहीं है, मैं तू वह यह नहीं है, अपना देह और पराया देह नहीं है, द्वैत अद्वैत नहीं है, और नाम रूप नहीं है, कर्तव्य अकर्तव्य नहीं है, वस्तु अवस्तु नहीं है, शून्य अशून्य नहीं है। 11 निषेध है, और शून्य अशून्य नहीं है। 11वां निषेध से सदाशिव ने वशिष्ठ को बताया आकाश के दृष्टांत से। तो ये जो दृष्टा दर्शन दृश्य, जो आभास मात्र है, विवर्त है, जो आभास मात्र, उसमें वही चिदाकाश आकाश रूप से भासता है।
और लास्ट में निर्वाण में परीक्षित के दृष्टांत में कहा। आकाश को ईश्वर की उपमा दी है वशिष्ठ राम को कि जिसमें ये सारा जो सर्जन जिसमें समाया हो, जिससे रहा हो, जिससे रहा हो, जिसमें रहा हो और जिसमें लीन होता हो, वो आकाश शून्य कैसे है? वो शून्य नहीं है, वो ईश्वर है, ऐसा करके बताया। अभी 3 दृष्टि बताई वशिष्ठ ने, पामर दृष्टि, यौक्तिक दृष्टि और तत्व दृष्टि। फिर जो तत्व है केवल स्वयं परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, केवल स्वयं अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा, स्वयं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश, तो उसमें तत्व दृष्टि भी नहीं है। जो तत्ववेत्ता जीवन मुक्त, जो आत्मज्ञानी अभी कहा, ब्रह्मवेत्ता कहा, वो जो ब्रह्म रूप रहा है, परमात्मा रूप रहा है, चिदाकाश रूप रहा है, तो वहाँ तत्व दृष्टि भी नहीं है। दृष्टा दर्शन दृश्य आरोप से कहा है, तत्व का दृष्टा दर्शन दृश्यपना भी आरोप से कहा है। पामर दृष्टि माने तत्व को जानने का उसमें ये भी नहीं है, लक्षण भी नहीं, लक्ष्य भी नहीं। यौक्तिक दृष्टि विवेक दृष्टि है कि परमात्मा नित्य सत्य है और बाकी जो दिखावा मात्र ये दृश्य है अनित्य सत्य है। तो यौक्तिक माने विवेक और तत्व दृष्टि माने परमात्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं है, उसमें दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है, और वो ही अजन्मा अविकारी अविनाशी है और अखंड सच्चिदानंद है। तो यहाँ जो दूसरा प्रश्न आया है ना, फिर से दूसरा है ना, કઈ એક વસ્તુમાં આકાશ તથા અનાકાશ એ બંને છે? तो ये लास्ट जो कहा कि शून्य भी नहीं है अशून्य भी नहीं है, ऐसा सदाशिव ने 11वां निषेध कहा। शून्य भी नहीं है अशून्य, तो परमाकाश महापूर्ण, महामाया महाशून्य, परमाकाश महापूर्ण, परमाकाश परब्रह्म परमात्मा, परम चिदाकाश महाचिदाकाश, तो परमाकाश महापूर्ण, महामाया महाशून्य, शून्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमाकाश महापूर्ण, परमात्मा तो महापूर्ण है ही, और अशून्य भी नहीं है, माने शून्य है। तो क्या, जिसको कल्पना कहते हैं, भ्रम कहते हैं, मोह कहते हैं, अविवेक अविचार कहते हैं, अविद्या ज्ञान माया कहते हैं, तर्क संशय शंका कहते हैं, वह मन श्रद्धा कहते हैं, तो ये शून्य है। जो कल्पना है, अध्यस्त है, जो आरोपित है, कल्पित है, भ्रांति मात्र है, जो असत असार दुख है, जो मिथ्या नाशवंत है, जो स्वप्नवत मुग्जलवत है, तो वो अशून्य भी नहीं, माने शून्य भी है। जो नहीं है वो दिखता है, वो शून्य है, और जो है वो प्रकाशता है, वो पूर्ण है। ये सारा कौन प्रकाशता है? परमात्मा। तो प्रकाश पूर्ण है, अनंत चैतन्य प्रकाश, और आभास और शून्य है, माने शून्य भी, शून्य और अशून्य नहीं है। शून्य नहीं है क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, प्रकाश पूर्ण है, अशून्य नहीं है, माने शून्य भी है, तो आभास शून्य है। जैसे सूर्य प्रकाश है, सूर्यनारायण भगवान है, तो ये प्रकाश है, तो सूर्य पूर्ण है, दृष्टांत। और सूर्य प्रकाश ही अपने प्रकाश अपने स्पंद में, स्पंद स्पंद, चलन अचलन, संवेदन संवेदन, स्फुरण स्फुरण में, ये सारा ये भूर्भुव स्व त्रैलोक्य भासता है, तो वो शून्य है क्योंकि सूर्य में वो नहीं है। सूर्य भूर्भुव स्व को प्रकाशता है अपने स्पंद में, प्रकाश अपने स्पंद में, प्रकाश ही त्रैलोक्य भासता है, लेकिन स्पंद ब्रह्म भी नहीं है और त्रैलोक्य भास वो भी नहीं है, ब्रह्म भी नहीं है, और प्रकाश ही है। तो प्रकाश पूर्ण है। जैसे महासागर का जल हिलता डुलता है तो स्पंद ब्रह्म है, तो महासागर में जल में स्पंद ब्रह्म नहीं है, हंस में लो तो स्पंद नहीं है, चलन नहीं है, और उसमें तरंग भाषा है, उसका उत्पत्ति स्थिति लय भाषा है, आभास आकार विकार नाम रूप अनेक, तो वो भी हाथ में लो तो नहीं है, कोई आभास आकार विकार भी नहीं, चलन भी नहीं है। तो इसे प्रकाश में स्पंद ब्रह्म भी नहीं है और भूर्भुव स्व त्रैलोक्य ब्रह्म भी नहीं है। तो सूर्य अखंड है, पूर्ण, ब्रह्म सूर्य अखंड है, पूर्ण है। तो शून्य भी नहीं है और अशून्य भी नहीं है। शून्य क्यों नहीं है? अखंड ब्रह्म सूर्य पूर्ण है,
और अशून्य भी नहीं, माने शून्य भी है तो विवर्त शून्य है। क्लियर है? दूसरा हो गया ना। तीसरा પ્રશ્ન 3 કિંચિત છે તે ન કિંચિત કેમ થાય? કાંઈ પણ નથી અને કાંઈક છે એવી કઈ વસ્તુ છે? किंचित भी है और अकिंचित कैसे? कुछ भी नहीं है और सब कुछ है, ऐसा है ना। કાંઈ પણ નથી અને કાંઈક છે। कहीं पर नहीं है कहीं से, माने कुछ भी नहीं और सब कुछ है। तो किंचित है और किंचित कैसे? तो किंचित किसको कहा? यहाँ विवर्त को कहा कि ये सब है ना, तो ये सब नहीं है कैसे? नेह नानास्ति किंचन एकमेव अद्वितीय ब्रह्म। तो ऐसे कि एक ही अद्वितीय परमात्मा है, तो न इह नाना अस्ति किंचन, इस परमात्मा में ब्रह्म में अनेक कुछ नहीं है। क्यों ये किंचित इसको कहा? ये सब दिख रहा है ना, सबको जानने में आता है, सबको अनुभव में आता है, सबको सच्चा लगता है, सब तो ये है। तो यह किंचित कैसे? तो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। तो ब्रह्म तो परमात्मा तो प्रकाश तो एक ही अद्वितीय है और उसमें अनेक कुछ नहीं है, इसलिए वो किंचित अकिंचित है। और अभी कुछ नहीं है और सब कुछ है, तो वो आभास रूप में, दृश्य रूप में कुछ नहीं है, लेकिन वो प्रकाश रूप में सब कुछ है। जो कुछ नहीं है वो कैसे सब कुछ है? कुछ नहीं है वो कुछ है माने सब कुछ है। तो प्रकाश सब कुछ है, ये सूर्य सब कुछ है और भूर्भुव स्व कुछ नहीं है, तो उसमें भूर्भुव स्व कुछ नहीं है, फिर वो कुछ है। तो परमात्मा सब कुछ है और ये सारा विवर्त कुछ नहीं है। क्लियर है ना? नंबर 4 4। પ્રશ્ન નંબર 4 अच्छा ये वो बस पढ़ जाने से मात्र मालूम पड़ता है? नहीं पढ़ जाएंगे, कोई पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि प्रकाश होने से मालूम पड़ेगा। एक एक शब्द का स्फोट होगा तभी मालूम पड़ेगा। खाली पढ़ेगा तो क्या मालूम पड़ेगा ये? कितना भी कंठस्थ कर ले और कितना भी इसका प्रवचन करे, ये प्रकाश है, ये विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं है, परापश्यंती मध्यम वैखरी नहीं है। ये महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। इसलिए जो वेद है वो भी नेति नेति करके जब मौन हो जाता है तो वहाँ प्रकाश खुलता है और खिलता है, ऐसा है ना। इसलिए कहा अवांग मनो सगोचरम यथावत मन बानी निवर्तनते, है ना, अप्राप्य मनसास, ऐसा कहा। लेकिन यहाँ जैसे गीता में ऐसा कहा श्री भगवान हुआ च, वैसे यहाँ परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हुआ च। तभी समझ सकते हैं, खाली शब्द बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। तो कितना भी पाणिनि का व्याकरण किया हो और कितना भी उसकी व्युत्पत्ति से उसका अर्थ निकाले तो वो अर्थ आभास में ही निकालेगा, क्योंकि जो आभास से रहा है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये जगत है और सबका मैं मेरा है, तो वहाँ से ही वो अर्थ निकालेगा। लेकिन जहाँ कोई अध्यास नहीं है, जहाँ कोई आभास नहीं है और जो है सो है परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, तो अपने में परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। वो जब स्वयं प्रकाशता है, संपूर्ण प्रकाशता है, तो ये प्रकाश है, ये विचार वाणी शब्दार्थ नहीं है। फिर शब्द छोड़ देना चाहिए। विचार वाणी शब्दार्थ जहाँ नहीं है, जहाँ शास्त्र वासना गुरु वासना नहीं है, अविद्या है ही नहीं, ऐसा बोधीय विद्या का क्षय है। शास्त्र गुरु विद्या का क्षय नहीं करते हैं, तो है ही नहीं ऐसा बोध। तो वो जो बोध है वही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। जैसे सूर्य है तो सूर्य में रात्रि का अंधकार नहीं है, वो सूर्य भी सूर्य से जाना जाता है और उसमें रात्रि का अंधकार नहीं है, वो भी सूर्य से जाना जाता है। वैसे परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश स्वसंवेद्य वही अपने से अनुभव में आता है, दूसरा अनुभव नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं है। तो और
उसमें ये विवर्त नहीं है, वो भी उससे अनुभव में आता है। जैसे सूर्य भी सूर्य से अनुभव में आता है, जानने में आता है, और उसमें रात्रि का अंधकार नहीं, वो भी सूर्य से जानने में आता है। सूर्य से ही जानने में आता है कि भाई सूर्य है और रात्रि का अंधकार नहीं है। वैसे परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति से ही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति जानने में आता है, अनुभव में आता है। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति से ही उसमें अविद्या ज्ञान माया ये नहीं है, वो भी उससे जाना जाता है, विवर्त नहीं है। क्लियर है ना? फिर से फोर्थ, किंचित अकिंचित कैसे हैं, और जो कुछ नहीं वो कुछ है कैसे, वो क्लियर हो गया। नंबर 5 क्या मुका प्रभु योग वसिष्ठ पढ़ने से मालूम पड़ता है? वो आप शास्त्री आचार्य को 3 साल का शास्त्री करो, आप काशी में करो या हरिद्वार में करो, कहीं भी करो, और 5 साल का आचार्य करो, तो शब्द ज्ञान होगा। और ये स्वयं प्रकाश है। शब्द ज्ञान से आप शब्द का अर्थ लगाएंगे तो अलग अलग व्यक्ति से पूछेंगे तो अलग अलग अर्थ लगाएंगे। और इसमें वशिष्ठ राम को कहते हैं सारी श्रुतियाँ अद्वितीय ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती हैं, तो यहाँ अद्वितीय ब्रह्म ही प्रकाशेगा, और उसमें उसका जो अध्यास होगा वो मिक्स आएगा उसमें, क्योंकि वो शिक्षक की तरह होगा। जैसे BA MA किया तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, फिर शास्त्री वेदांत आचार्य तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, तो शिक्षक होगा। तो शिक्षक अपना जो पाठ्य पुस्तक का अभ्यासक्रम है वो पगार लेने के लिए ऐसे पढ़ाएगा। हम जब ये जो काव्य जो थे नरसिंह मेहता मीरा में, तो उसका प्रकाश करते थे तो शिक्षक को बोलते थे हम भी ऐसा तो नहीं जानते थे और नहीं ऐसा समझाया नहीं विद्यार्थियों को, ऐसा कहते थे। शिक्षक को भी ऐसा कहते थे, समझाते हैं। कोई शिक्षक हो सकता है लेकिन वो ब्रह्म नहीं हो सकता है, और ब्रह्म कोई शिक्षक नहीं होता है। शिक्षक जन्मता मरता है, ब्रह्म अजर अमर है। नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक न तैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत अक्लेद्यो यम अशोष्य। हाँ, એટલે એ સીધી વાત है। पांचवा 4 तो हो गया। 3 हुए। चौथा है, अच्छा चौथा प्रश्न 4 उसमें क्या कहा कि नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन, ऐसा कहा ना। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने सर। शिक्षक जन्मता मरता है, आचार्य शास्त्रीय आचार्य जन्मता मरता है, लेकिन परमात्मा अजन्म अविकारी अविनाशी है। परमात्मा को जानता है, उसमें ये मैं हूँ ऐसा अहंकार नहीं रहता है। जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशता है। है कि नहीं? है। मैं से अर्थ होगा और स्वयं प्रकाश परमात्मा प्रकाशेगा, तो उसमें आसमान जमीन का डिफरेंस होगा। उसमें सीधी परमात्मा जो परम प्रकाश परम आनंद परम शांति सीधा वो प्रकाशेगा। जहाँ अहंकार नहीं होगा और स्वयं प्रकाश परमात्मा स्वयं प्रकाशेगा, स्वयं संपूर्ण सर्वस्व सर्वत्र सदा एक अद्वितीय अनंत अनंत निरंजन निराकार निर्विकार अपरिच्छिन्न तुर्यातीत, साक्षी भी नहीं तुर्य भी नहीं, तुर्यातीत। तुर्य तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति को जानता है, उससे रहित है, उससे पर है, फिर भी साक्षी साक्ष्य भेद है। लेकिन तुर्यातीत तो माँ चिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, उसमें कोई भेद नहीं है। अध्यस्त से जाना होगा तो भेद आएगा, मैं का भेद आएगा, जगत का भेद आएगा, गुरु शिष्य का भेद आएगा। क्लियर? अज्ञान ज्ञान का, बंध मोक्ष का। तुर्यातीत में कोई भेद नहीं है। अज्ञान ज्ञान भी नहीं है, बंध मोक्ष भी नहीं है, साक्षी साक्ष्य भी नहीं है, दृष्टा दृश्य भी नहीं है, आकाश आदि भूत भी नहीं है, और ये मैं तू ऐसा जगत भी नहीं है। दृष्टा दृश्य कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है, केवल स्वयं परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद। तो वो जो रहा है
कि जिसमें वो भी नहीं रहा है और कोई नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं होता है, तो वहाँ परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वयं प्रकाशता है। क्योंकि जहाँ कुछ नहीं रहा है तो वो तो रहा ही है, अध्यस्त कुछ नहीं रहा है, लेकिन अधिष्ठान तो है ही, है कि नहीं? स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। उसको सिद्ध नहीं होना है, वो स्वयं सिद्ध है। उसको प्रकाश नहीं होना है, वो स्वयं प्रकाश है। उसको पूर्ण नहीं होना है, स्वयं पूर्ण है। उसको स्वरूप नहीं होना है, स्वस्वरूप है। तो कोई शास्त्र गुरु परमात्मा को पूर्ण नहीं करते हैं। परमात्मा स्वयं पूर्ण है और वो शास्त्र गुरु निरपेक्ष है। परम चिदाकाश अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत, अनंत संपूर्ण अपरिगी निर्भ्रांत निरपेक्ष। परम चिदाकाश अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत, अनंत संपूर्ण अपरिगी निर्भ्रांत निरपेक्ष। क्लियर है ना? नंबर 4। પ્રશ્ન 4. ત્વમ પદમાં અહમ પદ કેમ આવે? એટલું જ. त्वम पद में अहम पद कैसे आए? क्लियर है? त्वम पद में अहम पद कैसे आए, है कि नहीं? तो त्वम कैसे कहते हैं? किसको कहाँ कहेंगे त्वम, और अहम कहाँ कहेंगे? समझाते हैं। अभी अधिष्ठान से लेंगे, परमात्मा से लेंगे। तो यदि अध्यारूप से देखेंगे तो त्वम आएगा, और अधिष्ठान से देखेंगे तो अहम आएगा। समझाते हैं। यदि अध्यस्त से लेंगे तो त्वम आएगा, और अधिष्ठान से लेंगे तो अहम आएगा। परमात्मा का जो स्वयं का जो सत्ता प्रकाश रूप है, सत्ता सामान्य रूप है, तो उसकी एंटिटी, आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसका पहचान, परमात्मा की पहचान परमात्मा का मैं है। जिसके हृदय में परमात्मा, जो परम कृपाणु परमात्मा, उसकी असीम कृपा से जिसके हृदय में वो प्रकाशता है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य वेष्टितम ज्योतिषम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो परमात्मा स्वयं प्रकाशेगा। केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति, तो प्रकाश बोलेगा, प्रकाश बानी। ये बानी नहीं, ये जीव जो है, व्यक्ति जो है, वो अंतःकरण है और चिदाभास है। उसका विचार बानी शब्द नहीं, खुद जो स्वयं प्रकाश परमात्मा है, अनंत चैतन्य प्रकाश, वो प्रकाश में से बानी आएगी। मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। मैं स्वयं और प्रकाश बानी। समझाता कि नहीं? प्रकाश खुद बोलेगा, है ना? तो वो मैं है। फिर प्रकाश जिस पात्र में बोलेगा वो तू है। समझाते हैं? तो जो अध्यस्त पात्र है उसका जो तुम है, तो वो बाधित है, तो वो अहम, फिर वो परमात्मा का है, प्रकाश का है। ये पढ़ने से नहीं मालूम होगा। तो हम अहम कैसे होगा? तो अहम क्या है? वो प्रकाश का मैं है, परमात्मा का मैं है, जीव का नहीं। समझाता है? उनका प्रो क्लियर हो रहा है आपको? तो हम अहम कैसे होगा? तो जो परमात्मा स्वयं, जो परम कृपाणु परमात्मा की असीम कृपा से वो स्वयं प्रकाशेगा, तो प्रकाश बोलेगा, परमात्मा बोलेगा कि मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ। अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति, तो वो अहम। ये अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। ये किसको कहते हैं? अंतःकरण की वृत्ति को कहते हैं। वो खोटा है, क्योंकि अंतःकरण बाधित है, वो अविद्या है, बुद्धि अविद्या है। राम ने हनुमान को अध्यात्म में कहा, हनुमान मैं तुम्हें परमात्मा आत्मा अनात्मा का तत्व कहता हूँ। बुद्धि अविद्या है, आभास कभी सत्य नहीं होता, और साक्षी परमात्मा है। आभास माने चिदाभास। तो बुद्धि की भ्रांति भासती है, उसमें साक्षी परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, उसको चिदाभास कहते हैं। वो चिदाभास से बुद्धि अहम रूप जीव है,
तो राम कहते हैं आभास कभी सत्य नहीं होता हनुमान को, बुद्धि अविद्या है और साक्षी परमात्मा है। तो साक्षी परमात्मा का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है, जो आभास मात्र है, भ्रांति मात्र है, वो चिदाभास है। तो प्रतिबिंब भी, प्रतिभास भी सच्चा नहीं है। तो चिदाभास से बुद्धि अहम रूप जीव है, ये व्यक्ति है, मैं इस देह में ये अमुक जीव हूँ, मैं इस देह में अमुक व्यक्ति हूँ, तो वो अनात्मा। फिर जिस साक्षी का प्रतिबिंब पड़ता है परमात्मा, वो साक्षी, फिर अनात्मा बाधित है, इसलिए आत्मा का आरोप भी नहीं है, साक्षी का आरोप भी नहीं है। फिर तुर्यातीत परमात्मा, साक्षी तुर्य, जो चिदाभास से एक बुद्धि, उसको चिदाभास से एक बुद्धि, और जो जहाँ साक्षी है उसको देखता है, जानता है, लेकिन वो उसमें वो नहीं है, उससे रहित है और उससे पर है साक्षी, तो वो आत्मा। और फिर वो केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, वो परमात्मा माने वो तुर्यातीत, साक्षी तुर्य और चिदाभास सहित बुद्धि अनात्मा, साक्षी आत्मा और परमात्मा परमात्मा। क्लियर होता है? ये राम हृदय। राम ने कहा मैं तुम्हें हनुमान, मैं तुम्हें मेरा राम हृदय कहता हूँ, ये राम हृदय अध्यात्म। तो हम कैसे अहम हो सकता है? तो जहाँ परम कृपाणु परमात्मा की असीम कृपा से, तो वो केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा जिसके हृदय में रहा तो है सबके, लेकिन आवरण विक्षेप मल से ढंका हुआ है ना। आवरण किसको कहा है कि वो परमात्मा को नहीं जानना, उसको भूलना। विक्षेप किसको कहा है कि परमात्मा में जो नहीं है, तो ऐसी ये दृश्य भ्रांति भासना। और मल किसको कहा है, तो वो दृश्य भ्रांति में ये मैं हूँ, ये मेरा है। तो आवरण विक्षेप मल जहाँ नहीं रहता है और जहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशता है और वो प्रकाश बोलता है कि मैं स्वयं अनंत पूर्ण पर ब्रह्म हूँ, ये प्रकाश की वाणी है। तो अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है, वो व्यक्ति जो चिदाभास से एक बुद्धि अहम रूप जीव है, वो अपने को जो ब्रह्म कहता है वो खोटा है। समझाते हैं मेरा प्रभु? लेकिन खुद जो केवल स्वयं पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद जो है, समझ आता है ना, जो तो वो प्रकाश बोलता है अहम ब्रह्मास्मि। वो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति नहीं है, लेकिन वो स्वयं प्रकाश है। तो हम कैसे अहम दिखता है, हो सकता है? तो फिर जहाँ परम कृपाणु परमात्मा की असीम कृपा से वो स्वयं प्रकाशता है कि मैं परमात्मा हूँ। अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति, जैसे निर्विकल्प समाधि में अहम मन वासना का संपूर्ण क्षय होता है और जीव ब्रह्म की एकता होती है। आदि शंकर ने विवेक चूड़ामणि में कहा शुरू में ही कि यदि जीव ब्रह्म की एकता हो तो शास्त्र का क्या प्रयोजन, और यदि जीव ब्रह्म की एकता न हो तो भी शास्त्रों का क्या प्रयोजन। ऐसा मनुष्य जन्म, मुमुक्षत्व, महापुरुष, संश्रय, ये तीनों अनेक जन्मों के पुण्य से प्राप्त होता है, ऐसा कहा है आदि शंकर। तो अभी त्वम अहम कैसे होता है? तो वही प्रभु कृपा ही केवलम, यही जय प्रभु। तो सर्वत्र प्रभु का ही जय है, अस्तित्व। सत्यमेव जयते नानृतम, श्रुति पूरी नहीं है, ये खाली आधी श्रुति लिखी है, सत्यमेव जयते। तो जयते माने कोई युद्ध होता है और जय पराजय, ऐसा नहीं। जय शब्द सत्ता प्रकाशवाचक है, सत्य का ही अस्तित्व है, असत का नहीं। सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते माने सत्य का ही अस्तित्व है। सत्य माने परब्रह्म परमात्मा, न अनृतम, असत का नहीं। ऐसे समझ बात है ना? सत्य का है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्वय तत्त्वदर्शी भी अविनाशी तो तद्विधि ये न सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो अविनाशी है। तो वो जब अहम प्रकाशता है, अहम कौन है? परमात्मा। पर प्रकाश का मैं, प्रकाश मैं कहता है वो अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म मैं कहता है वो अहम ब्रह्मास्मि। और जहाँ वो परम कृपाणु अपनी असीम कृपा से स्वयं प्रकाशता है, तो वहाँ ये बाधित हो जाता है, ये नहीं रहता है।
इसको हटा के ही तो वो प्रकाशता है। वो प्रकाशता इसलिए हट जाता है, जैसे सूर्य प्रकाशता है इसलिए रात्रि का अंधकार हट जाता है, रात्रि का अंधकार हट जाता है और सूर्य प्रकाशता है, वाइस वर्सा, अरस-परस। क्लियर है ना? तो हम कैसे अहम होता है? तो जब अहम प्रकाशता है, अहम माने परमात्मा, दूसरा कोई अहम है ही नहीं। ये सारे भूत वर्तमान भविष्य के अनंत योनि जन्म जाति के जीव का अहम वो देह में हूँ, देहाध्यास है, देह में हूँ। तो वो मैं, वो अहम नहीं है, वो त्वम है। परमात्मा क्या कहेगा? महासागर क्या कहेगा? मैं से कहेगा महासागर, तो मैं महासागर हूँ और तुम चक्रित तरंग फैन बुद्ध हो। तो ये त्वम अहम कैसे होगा? तो चक्रित तरंग फैन बुद्ध अपना मैं छोड़ देगा तो वहाँ महासागर मैं कहेगा। क्लियर होता है? केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है तो वो महासागर है, और ये ईश्वर माया जीव जगत ये अनेक चक्रित तरंग फैन बुद्ध है। तो सबका जो मैं है वो अध्यस्त मैं है, आरोपित कल्पित, समझ में आता है? वो अपना मैं छोड़ देगा कि माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, तो वह माचिदा का स्वयं प्रकाशेगा, तो वो त्वम बाधित हो गया।